Hello dear students of class 11th. Once again I am here to discuss some more topics associated with vector algebra. In my last video lecture I shared with you what are vector quantities, scalar quantities, tensor quantities, what are different types of vector quantities, how we add to vectors using tip and tail method, how we subtract to vector using tip and tail method. Now today my main focus will be how we multiply two vectors, that is multiplication of the two vectors. And before discussing multiplication of two vectors, we are going to share two important points: how we find displacement vector of the body as well as how we find position vector of the body, because these two subtopics will be used while we will go for the multiplication of the two vectors. So my today's lecture first topic is how we find displacement vector of the body. Second topic is how we find the position vector of the body, and then we will go for the multiplication of the vector. Displacement vector of the body. Displacement vector. Dear students, you know displacement vector is such type of vector which represents displacement of the body. When body displaced, it moves from initial point to destination point. So if point M is initial point and point N is destination point, definitely these 2 points will have some coordinates. Let x1, y1, z1 is the coordinate of starting point, and x2, y2, z2 is the coordinate of destination point. Then while we will go for the displacement vector, since body is displaced from point M to point N, so starting point followed by destination point, put arrow sign, will be equal to x coordinate of destination point minus x coordinate of starting point into y, plus y coordinate of destination point minus y coordinate of starting point into j, plus z coordinate of destination point minus z coordinate of starting point into k. This is the method. For example, if this point is having coordinates 2, 4, 3 and this point is having coordinates 1, -2, -5, and body is displaced from M to N, then displacement vector Mn will be equal to 1 - 2 into y plus -2 - 4 into j plus -5 - 3 into k, that is -I -6j -8k. Now if same body if displaced from N to M, then the displacement vector will be represented by vector Nm. For it, now starting point is M, N, or destination point is N, so you will write 2 - 1 into y plus 4 - -2 into j plus 3 - -5 into k, that is I plus 6j plus 8k. Now if we compare vector Mn and vector Nm, we can say that vector Mn is minus times vector Nm. अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो ये वेक्टर मिल जाएगा. ये हम बार बार आपसे वीडियो लेक्चर में कह रहे हैं कि जब किसी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज करते हैं तो माइनस साइन लग जाता है. अगर ईस्ट डायरेक्शन में वेक्टर 4 न्यूटन का है तो वेस्ट डायरेक्शन वेक्टर होगा -4 न्यूटन का. सो दिस इज द प्रूफ ऑफ आल्सो व्हाई वी से व्हेन वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर वी हैव टू पुट माइनस साइन. नाउ इफ वन इज गोइंग टू आस्क व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस मॉडुलस ऑफ वेक्टर mn का मतलब हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या मॉडुलस ऑफ वेक्टर nm का भी मतलब हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट.
ये कहलाता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को निकालने का मेथड, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते तो क्या मेथड लेते हैं, अंडर रूट। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं उस वेक्टर में जो i का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, यहाँ पे i का कोफिशिएंट -1 है तो -1 का स्क्वायर, j का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस -j का स्क्वायर प्लस k का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 1 प्लस 36 प्लस 64, दैट इज अंडर रूट 101। यह मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। अगर हम वेक्टर nm का मैग्नीट्यूड निकालें तो भी यही आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ ऑफ द वेक्टर, और इस वेक्टर की लेंथ चाहे m से n की तरफ जाए चाहे n से m की तरफ सेम होगी। सो दिस इज द वे टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एज वेल एज व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। Now next is how we find the position vector. Position vector is such type of vector which represents position of any point, and when we locate the position, first we fix a point which is known as reference point, and generally origin is taken as reference point. So let we have a point M whose coordinates are x, y and z. If we join point O with point M and put arrow sign towards point M, then the vector OM is called position vector of point M. How we find it? इन दोनों में ये डेस्टिनेशन पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है, मेथड वही है, डेस्टिनेशन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इंटू वाई प्लस वाई माइनस जी इंटू 0 प्लस z माइनस 0 इंटू के, दैट इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये है किसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को निकालने का मेथड। और अगर ये कहा जाए, पूछा जाए पॉइंट इस ऑरिजिन से कितना दूर है, तो हमको इस वेक्टर का लेंथ निकालना है, हमको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अगर हम पॉइंट ओ एम का मैग्नीट्यूड निकालें तो मिलेगा अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर। इससे यह पता चलता है कि पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, मीन्स पॉइंट की ऑरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, मीन्स इस वेक्टर की लेंथ कितनी है। तो जब भी किसी वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं हमको वेक्टर की लेंथ मिलती है, और मैग्नीट्यूड निकालने का मेथड क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे डियर स्टूडेंट्स जो हमको बार बार यूज़ करने हैं आगे। नाउ वी आर गोइंग फॉर द मेन टॉपिक, that is multiplication of the two vectors. How we multiply two vectors? We already discussed how we add two vectors, then we discussed how we subtract two vectors. Now we are going for how we multiply two vectors. Multiplication of two vectors. मल्टीप्लाई करना हम लोग जूनियर क्लास से जानते हैं, लेकिन हम लोग जूनियर क्लास में जब मल्टीप्लिकेशन करते थे तो मोस्टली नंबर का करते थे, और नंबर से स्केलर होती है। हमसे कहा गया 4 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो हमारी हैबिट थी हम लोग 4 इंटू 5 भी लिखते थे, कुछ लोग 4 क्रॉस 5 भी लिखते थे, और दोनों का रिजल्ट 20 आता है। ये डॉट साइन है, ये क्रॉस साइन है। तो जब मल्टीप्लिकेशन करते समय डॉट साइन अप्लाई किया जाता है दो स्केलर क्वांटिटीज़ के बीच में, तो रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 3 और 6 का मल्टीप्लिकेशन करना है, चाहे डॉट साइन लगाओ और चाहे क्रॉस साइन लगाओ, रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों क्वांटिटीज़ वेक्टर हैं, अगर दोनों क्वांटिटीज़ वेक्टर हैं, तो while we multiply it plays very important role whether we are multiplying using dot
sign or we are multiplying using cross sign. When we multiply two vectors using dot sign, it is called dot product method. And when we multiply two vector quantities using cross sign, it is called as cross product method. So there are two types of multiplication. Number one, dot product, and number two, cross product. Dot product is also known as scalar product, because when we put dot sign between two vectors and multiply, we get result as scalar quantity. Cross product is also known as vector product, because when we multiply two vector quantities by putting cross sign between them, result will be a vector quantity. ऐसा नहीं होता था जब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन साइन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है जब हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं. तो व्हेन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स, वी हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर मल्टीप्लिकेशन, वेदर वी पुट डॉट साइन और वी पुट क्रॉस साइन. If we will multiply two vectors using dot sign, result will be a scalar only, means result के पास केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा. And if we multiply two vectors by using cross sign, result will be a vector only, means result के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा. तो my dear students, now you have to be aware if you are going to multiply two vectors. सोच लीजिएगा कि इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हमको डॉट साइन लगाना है कि क्रॉस साइन लगाना है. डॉट साइन तब लगेगा जब हम रिजल्ट स्केलर चाहते हैं, और क्रॉस साइन तब लगेगा जब हम रिजल्ट वेक्टर चाहते हैं. अब डॉट प्रोडक्ट से रिजल्ट स्केलर क्यों मिलता है, या डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से रिजल्ट वेक्टर क्यों मिलता है, या क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, इससे ये हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट मेथड से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. हमने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज को जनरल वे में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड एज AXI प्लस AYJ प्लस AZK. वेक्टर M इज रिप्रेजेंटेड एज MXI प्लस MYJ प्लस MZK. वेक्टर V इज रिप्रेजेंटेड एट VXI प्लस VYJ प्लस VZK. ये VX VY VZ क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर V along XYZ एक्सिस. AX AY AZ क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A along XYZ एक्सिस. BX BY BZ क्या होंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B along XYZ एक्सिस. तो सपोज वी आर इंटरेस्टेड टू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स A एंड B बाय पुटिंग डॉट साइन. We want to know the value of A dot B. ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, बीच में डॉट साइन लगा है. तो सबसे पहले वेक्टर A को हम इसके कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे AXI प्लस AYJ प्लस AZK. फिर डॉट साइन लगाएंगे BXI प्लस BYJ प्लस BZK. इसके बाद जो हमको मेथड 4th 5th 6th क्लास से बताया गया वही यूज़ करने जा रहे हैं. पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होगा आपको मिलेगा AX BX. AX और BX नंबर है, नंबर के बीच में चाहे डॉट लगाओ चाहे क्रॉस लगाओ, मैंने आपको बताया कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. ये I है, ये I है, बीच में डॉट का साइन है I डॉट I, क्योंकि दो ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं. फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे AX BY I डॉट J प्लस AX BZ I डॉट K. इसके बाद यही प्रोसेस इसके साथ में करेंगे AY BX J डॉट I AY BY J डॉट J AY BZ J डॉट K. फिर थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस AZ BX K क्रॉस I AZ BY K क्रॉस J
ए जेड बी जेड के डॉट के, 9 टर्म्स मिलेंगे, 3 इसके साथ में, 3 इसके साथ में, 3 इसके साथ में। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है जो हम लोग सीख के आए हैं 4th 5th 6th क्लास में, उसको अडॉप्ट किया। इसके बाद while we multiply two vectors by dot product method, we follow dot product rule। जब हम दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट मेथड से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम एक रूल फॉलो करते हैं जिसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट रूल। ये कहता है सेम यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विल बी 1 एंड डिफरेंट यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है और डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। डियर स्टूडेंट्स, आगे आपको ये समझ में आ जाएगा ये हम बोल क्यों रहे हैं, लेकिन फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग आप इसको माइंड में रखिए। लेटर फेज में हम इसको प्रूव करके आपको दिखाएंगे कि ऐसा हम कहते क्यों हैं। सेम यूनिट वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट मीन्स आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, इसकी सबकी वैल्यू 1 मिलेगी। आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू 0 मिलेगी। ये हमको रूल फॉलो करना है, इसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट रूल। सेम यूनिट वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट विल बी 1 एंड डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। इसके हिसाब से ये 0 हो गया आई डॉट जे, ये 0 हो गया आई डॉट के, ये 0 हो गया जे डॉट आई, ये 0 हो गया जे डॉट के, ये 0 हो गया के डॉट आई, ये 0 हो गया के डॉट जे। 6 टर्म 0 हो गए क्योंकि 6 टर्म्स में डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है। तो हमारे पास बचे केवल 3 टर्म। कौन कौन से 3 टर्म्स बचे? ए डॉट बी इज इक्वल टू ये टर्म आई डॉट आई की जहां पे 1 लिखेंगे तो यहां मिलेगा केवल ए एक्स बी एक्स। जे डॉट जे की जहां पे 1 लिखेंगे तो यहां मिलेगा केवल ए वाई बी वाई। सिमिलरली लास्ट में मिलेगा ए जेड बी जेड। एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। जब 2 वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट मेथड से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिजल्ट आता है। वंस अगेन ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। बी एक्स बी वाई बी जेड क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस। ये ए एक्स ए वाई ए जेड और बी एक्स बी वाई बी जेड नंबर्स होते हैं। नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जब ऐड करोगे तो भी आपको नंबर मिलेगा केवल, और नंबर्स आर स्केलर, दैट इज वाई डॉट प्रोडक्ट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो by using this method only we say that dot product is a scalar product। अब आपको मैं एग्जांपल करके दिखाते हैं। आपसे कहा गया वेक्टर m 3i माइनस 2j प्लस 4k और वेक्टर n i प्लस j माइनस k। फाइंड वेक्टर m डॉट वेक्टर n। तो इस मेथड के हिसाब से वेक्टर m डॉट वेक्टर n होना चाहिए mx nx प्लस my ny प्लस mz nz। ये है mx, ये है my, ये है mz, ये है nx ny nz। mx की जहाँ पे लिखा है 3, nx की जहाँ पे लिखा है 1, my की जगह लिखा है -2, ny की जगह पे लिखा है 1, mz की जगह पे लिखा है 4, nz की जगह पे लिखा है -1। 3 minus 2 minus 4 that is -3 and see here result is a consist of only number, no I j k, that is why this is dot product and dot product is also called scalar product। result may come with negative sign और result may come with positive sign। नंबर किसी नेगेटिव साइन के साथ में भी आ सकता है और नंबर किसी पॉजिटिव साइन के साथ में भी आ सकता है।
तो ये मेथड है जिस मेथड से हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट मेथड से। नाउ सेकंड वी आर गोइंग फॉर क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन। हाउ वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स बाय क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। Dear students, this is little bit difficult, so you have to focus more while you are multiplying two vectors by cross product method. We have two vectors A and B and we want to multiply these vectors by cross product method. So as usual, first we write vector A in general form, AXI AYJ AZK क्रॉस BXI BYJ BZK। इसके बाद भी वही स्टेप, पहले इससे सबको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे। 9 टर्म्स मिलेंगे। पहला टर्म होगा AX BX I क्रॉस I, दूसरा टर्म होगा AX BY I क्रॉस J, तीसरा टर्म होगा AX BZ I क्रॉस K, चौथा टर्म होगा AY BX J क्रॉस I, AY BY J क्रॉस J, AY BZ J क्रॉस K, फिर AZ BX K क्रॉस I, AZ BY K क्रॉस J एंड AZ BZ K क्रॉस K। 9 टर्म्स फिर आ गए। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट रूल डॉट प्रोडक्ट से कुछ डिफरेंट है। वाइल वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स बाई क्रॉस प्रोडक्ट रूल, we follow while we multiply two vectors by cross product, we follow cross product rule as same unit vectors, ध्यान से सुनिएगा, same unit vectors cross product will be 0, whereas different unit vector cross product will be remaining unit vector taken in cyclic order। स्टूडेंट्स इसी को करने में मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट गलती करते हैं। साइक्लिक ऑर्डर में ही कंफ्यूजन होता है। देखिए मैं समझा रहा हूँ बहुत इजी वे में। आप ऐसे एक सर्किल बना लीजिए, उस सर्किल में तीनों यूनिट वेक्टर्स को एक ऑर्डर में ले लो, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। चलिए हम क्लॉकवाइज लेते हैं। वेक्टर आई, वेक्टर जे, वेक्टर के, तीनों को हमने क्लॉकवाइज ले लिया। सेम यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट इज 0, तो पहले तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, इसकी वैल्यू तो 0 लिख दीजिए। वंस अगेन वहाँ पे हमने आपसे कहा था कि सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है और डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। यहाँ आपसे कह रहे हैं कि सेम यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है और डिफरेंट यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी द रिमेनिंग यूनिट वेक्टर टेकन इन साइक्लिक ऑर्डर। ऐसा हम कहते क्यों हैं ये मैं आपको प्रूफ करके बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इसको आप माइंड में रखिए। अब जैसे आपसे कहा जाए आई क्रॉस जे बताइए, तो जब आई क्रॉस जे आप कर रहे हैं तो आई से जे की तरफ चल रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में मिल रहा है के, तो आई क्रॉस जे विल बी के। लेकिन अगर आपसे जे क्रॉस आई पूछा जाता तो जब जे से आई की तरफ चलते तो के के अपोजिट हो जाते, तो जे क्रॉस आई की वैल्यू लिखते माइनस के। जे क्रॉस के जब पूछा जाएगा तो जब जे से के की तरफ चल रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में हमको आई मिल रहा है। लेकिन अगर के क्रॉस जे करते तो के से जे की तरफ जब चलते हैं हम तो आई के अपोजिट हो जाते हैं, तो यहाँ लिखते हैं माइनस आई। Similarly, K cross I will be J and
I क्रॉस k will be माइनस जे। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट रूल जो हम अप्लाई करने जा रहे हैं। इसके हिसाब से 3 वेक्टर्स, इसमें 3 टर्म जीरो होंगे क्योंकि 3 ऐसे टर्म्स हैं जिसमें सेम यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जा रहा है। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, और ये तीनों जीरो हो गए। तो इन तीनों को तो पहले हमने जीरो कर दिया, उसके बाद जो 6 बचेंगे उनको कैसे लिखेंगे? CL। ये कुछ स्पेशल ट्रिक है, मेथड है, इसको करने में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डियर स्टूडेंट्स। A क्रॉस B विल बी, ये जीरो हो गया। I क्रॉस J जब करेंगे तो प्लस K मिलेगा, तो आप लिखोगे AX BY K प्लस AX BZ। I क्रॉस K माइनस J, आप साइक्लिक ऑर्डर में देख लीजिएगा, प्लस AY BX J क्रॉस I माइनस K प्लस AY BZ J क्रॉस K I प्लस AZ BX K क्रॉस I J प्लस AZ BY K क्रॉस J माइनस I। 2 टर्म्स में I होना चाहिए, 2 टर्म्स में J होना चाहिए, 2 टर्म्स में K होना चाहिए। अब जिन टर्म्स में I है उसमें हम I को बाहर निकालेंगे, तो यहां मिलेगा AY BZ माइनस वहां से AZ BY। जिन टर्म्स में J है उसमें से माइनस J बाहर निकालेंगे, तो यहां मिलेगा AX BZ माइनस AZ BX। जिन टर्म्स में K उसमें से प्लस K बाहर निकालेंगे, तो आपको मिलेगा AX BY माइनस AY BX। और यही 2 वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, AX AY AZ BX BY BZ तो नंबर्स हैं, नंबर्स को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर मिलेगा। तो यहाँ मिलेगा सम नंबर इंटू आई, सम नंबर इंटू जे एंड सम नंबर इंटू के, मीन्स रिजल्ट विल हैव along with number I J K, that is why result will be a vector quantity, because vector quantities are quantities which consist of I J K। इसलिए हम क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं क्योंकि रिजल्ट हमारा वेक्टर आता है। डियर स्टूडेंट्स, इस मेथड से मल्टीप्लाई करना, इस तरह से वैल्यूज प्लेस करना लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है, मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और लेंदी मेथड भी है क्रॉस प्रोडक्ट को निकालना इस तरीके से। एक शॉर्ट मेथड है जिसको हम कहते हैं डिटरमिनेंट मेथड। तो अगर हम डिटरमिनेंट मेथड यूज़ करें तो भी हम 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, और आप देखेंगे रिजल्ट यही आएगा जो हमने लॉन्गर मेथड से निकाला है। तो दिस इज द ट्रिक टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। डिटरमिनेंट, जो मैथ्स स्टूडेंट्स हैं वो डिटरमिनेंट पढ़ेंगे अलजेब्रा में, उस मेथड को हम यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास वेक्टर ए है, AXI AYJ AZK, वेक्टर बी है BXI BYJ BZK, और हम A क्रॉस B की वैल्यू निकालना चाहते हैं। इस तरह से 2 वर्टिकल लाइंस ड्रा कीजिए, इसी को डिटरमिनेंट कहा जाता है। इसको हम रो कहते हैं, इसको हम कॉलम कहते हैं। यहाँ पे लिखिए I, यहाँ लिखिए J, यहाँ लिखिए K, आँख बंद करके लिखिए, माइनस नहीं लगाना है, बस केवल I J के लिखना है। यहाँ पर जहाँ पे जो वेक्टर है, पहला वेक्टर A है, तो A में I J K के जो कोफिशिएंट्स हैं वो प्रॉपर साइन के साथ में लिखे जाएंगे। यहाँ सब प्लस है तो प्लस लिखिएगा, बीच में माइनस हो तो यहाँ माइनस लगा देते आप। सेकेंड वेक्टर में कोफिशिएंट्स ऑफ I J के यहाँ लिखे जाएंगे। इसके बाद आप इस तरह से I लिखेंगे। जब आप I लिखेंगे तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे।
जिस रो जिस कॉलम में आए तो छोड़ दीजिए। अब आपके पास 4 टर्म बचे, लेफ्ट टू राइट क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। चाहे ए जेड बी वाई लिखो चाहे बी वाई जेड लिखो, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जब आप जे लिखोगे तो ये डिटरमिनेंट का रूल है कि फर्स्ट रो पॉजिटिव सेकेंड रो नेगेटिव, तो जे को माइनस साइन के साथ में लिखेंगे। अब जिस रो में और जिस कॉलम में जे था छोड़ देंगे तो ये रो ये कॉलम छूट जाएगी, तो ये दो ये टर्म बचेंगे। फिर ए एक्स बी जेड क्रॉस मल्टीप्लाई लेफ्ट टू राइट माइनस ए जेड बी एक्स, थर्ड टर्म प्लस के, इस रो इस कॉलम को छोड़ दीजिए, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। और आप देखें तो रिजल्ट वही लिखा हुआ है जो ये लिखा हुआ है, आई टाइम्स ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई माइनस जे टाइम्स ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स प्लस के टाइम्स ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो बहुत शॉर्ट में हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट मेथड से। अगर ये नहीं समझ में आता तो आप लॉन्गर मेथड से जाइए करने के लिए। अब इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा रहा हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। सपोज कीजिए आपसे कहा गया वेक्टर m इज 2i माइनस 3j प्लस 2k एंड वेक्टर n इज i प्लस j प्लस 5k। फाइंड वेक्टर m क्रॉस वेक्टर n। तो मैं से डिटरमिनेंट बनाएंगे, यहाँ पर केवल आई जे के लिखेंगे। मैंने आपसे कहा फर्स्ट कॉलम में केवल आई जे के लिखा जाता है, प्लस माइनस कुछ नहीं देखते हैं। नाउ सेकेंड कॉलम में पहले वेक्टर में आई जे के कोफिशिएंट विद प्रॉपर साइन, यहाँ पे 2, यहाँ पे -2, यहाँ पे 2। और थर्ड कॉलम में आई जे के, सेकेंड वेक्टर में आई जे के कोफिशिएंट विद प्रॉपर साइन 1, 1, 5। आई होप ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद आई को बाहर निकालेंगे, इस कॉलम को छोड़ दीजिए, -3 इंटू 5 -15 इंटू -2 इंटू 1 2 माइनस जे। मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, माइनस जे, इस रो इस कॉलम को छोड़ दीजिए, 2 इंटू 5 10 -2 इंटू 1 2 प्लस के, इस रो इस कॉलम को छोड़ दिया, 2 इंटू 1 2 -3 इंटू 1, दैट इज यू विल गेट -17i -8j -3 प्लस 5k। दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो इफ़ यू गो फॉर द प्रैक्टिस, इफ़ यू डू द प्रैक्टिस, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं, बस आपको लिटिल बिट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ ब्रेन अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। नो, अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इस वेक्टर का कोई डायरेक्शन भी होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपसे शेयर करेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन क्या होता है, कौन कौन से रूल अप्लाई करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, एज वेल एज दिस डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एंगल। अगर आपको दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल दिया हो तो कैसे हम डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो दिस ऑल अबाउट माई टूडेज वीडियो लेक्चर डियर स्टूडेंट्स। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ना समझ में आ रहा है तो आप डिस्कस कीजिए। प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक एंड टेल योर फ्रेंड्स to subscribe if not subscribed yet. Thank you.